Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, from today we are going to start your history book and the second chapter, Nationalism in India. So let's see what will we read in this chapter. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the information of nation states. It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. New symbols and icons, new songs and ideas formed new links and redefined the boundaries of communities. In most countries, the making of this new national identity was a long process. How did this consciousness emerge in India? In India, and as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. But each class and group felt the effects of colonialism differently. Their experiences were varied and their notions of freedom were not always the same. The Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflicts. In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade century. In this chapter, we will pick up the story from the 1920s and study the non-cooperation and civil disobedience movement. So children, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे भारत में किस तरह से नेशनलिज्म की भावना का उदय हुआ। पिछली क्लासेस में आपने 20th सेंचुरी के जो फर्स्ट डिकेड थे उसके बारे में पढ़ लिया था कि किस तरह से नेशनलिज्म हमारे देश में बढ़ रहा था। अब इस में हम नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप पहले देख चुके हैं कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म की भावना है यूरोप से लेकर यूरोपीय नेशंस में फैलने लगी थी। जो लोग थे वो सिर्फ खुद की जो आइडेंटिटी थी उसको अपने देश से मिला कर के देखने लगे थे। नए नए सिम्बॉल्स थे, आइकन्स थे, नए नए सॉन्ग्स थे, वो जो थे वो हर व्यक्ति के अंदर इस जो राष्ट्रीयता की भावना उसको जागृत करने में लगे हुए थे। अब हमारे भारत में भी जो अलग अलग तरह के मूवमेंट्स हो रहे थे उसने लोगों को पास में लेकर आया और डिफरेंट तरह के जो ग्रुप्स हैं उनको एक साथ किया, लेकिन उसमें भी ज़रूरी सभी के जो एक्सपीरियंस थे वो डिफरेंट थे, सेम नहीं थे। उसके बाद जो ग्रुप्स थे वो कई भागों में बटे हुए थे और जो कांग्रेस लीडर महात्मा गांधी थे उन्होंने इन सारे ग्रुप्स को एक साथ करके एक बड़े मूवमेंट को तैयार किया, बड़े मूवमेंट को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और इस तरह से जो यूनिटी थी उसकी नई भावना का विकास हुआ। अब द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। सो लेट्स सी द नोट्स। Children, you have to read the chapter deeply. I am giving you only summary and I am giving you notes, but you have to read the chapter deeply. Okay? So children, here is your notes. पिछली बुक में आपके चैप्टर 2 जो है वो दूसरा था, अब उसे हटा दिया गया है। तो अभी चैप्टर 2 जो है वो नेशनलिज्म इन इंडिया है। तो आप डालेंगे हिस्ट्री नोट चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। लेट्स सी द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। द कांग्रेस under the leadership of Mahatma Gandhi tried to force groups together within one movement. However, the unity did not emerge without conflicts. अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारे देश में यूनिटी फैल रही थी, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए थे, उनके भले ही एक्सपीरियंस अलग अलग थे
और तो वो अपने अपने ग्रुप के द्वारा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी की लीडरशिप में जो बहुत सारे ग्रुप्स थे उनको एक साथ लाया गया, और हालांकि उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए थे, लेकिन फिर भी वो सारे ग्रुप्स एक साथ हुए, इकट्ठे हुए और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हुई। सो लेट्स सी द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स नोट्स। आपको ये सारे लिखने हैं एंड चैप्टर को डीपली रीड करना है। सो फर्स्ट टॉपिक, national movement was spreading in new areas in 1919 and incorporating new social groups and developing new modes of struggle. Mahatma Gandhi came to India and the idea of satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. He advocated that physical force was not necessary to fight the oppressor. In 1916, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. तो नेशनल मूवमेंट जो थे हमारे भारत के न्यू एरियाज़ में 1990 में फैल चुका था, और बहुत सारे मोड्स थे स्ट्रगल के, वो डेवलप हो चुके थे। महात्मा गांधी जो थे वो भारत में आए और उन्होंने सत्याग्रह का एक तरीका बताया कि सत्याग्रह के द्वारा भी हम सच की पावर से अपनी सच के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं और सच को ढूंढ सकते हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ फिजिकल फोर्स, शारीरिक बल ही जरूरी नहीं है अपने विरोधी को हराने के लिए, अपने विरोधी का विरोध करने के लिए। 1916 में गांधी जी चंपारण में गए, जो कि बिहार में है, और उन्होंने पीजेंट्स को इंस्पायर किया स्ट्रगल के लिए कि वो जो प्लांटेशन सिस्टम है उसके विरोध में वो लड़ें। ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जाती तो उसके विरोध में वो आवाज़ उठाएं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. His heroic fight for the Indians in South Africa was well known. His novel method of mass agitation, known as Satyagraha, had yielded good results. The idea of Satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. In 1916, Gandhi traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. In 1917, crops failed in Kheda district of Gujarat, but the government refused to remit land revenue and insisted on its full collection. In 1918, Mahatma Gandhi intervened in a dispute between workers and mill owners of Ahmedabad. He advised workers to go on strike and to demand a 35% increase in wages. Satyagraha brought Gandhi ji into close touch with the workers in the urban areas. तो चिल्ड्रन, सबसे पहले सत्याग्रह का आइडिया, गांधी जी जब भारत लौटे साउथ अफ्रीका से तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट किए थे भारतीयों के लिए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, तो उनको सभी लोग जान रहे थे और उसका रिज़ल्ट भी सभी को अच्छा मिला था वहाँ पर। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह का आइडिया दिया कि सच की पावर से हम सच के लिए अपनी जो लड़ाई है उसे लड़ सकते हैं। तो 1916 में सबसे पहले गांधी जी बिहार में चंपारण में गए, लोग पीजेंट्स को इंस्पायर किया कि वो जो प्लांटेशन सिस्टम है ज़बरदस्ती जो उनसे करवाया जा रहा है उसके विरोध में आवाज़ उठाएं। इसके बाद 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गए वो गुजरात के, और वहाँ पर उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि जो किसान हैं उनसे लैंड रेवेन्यू ना लिया जाए। उस समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा फसल वगैरह नहीं हुई थी, नुकसान हुआ था, लेकिन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनकी मांगों को रिफ्यूज़ कर दिया और पूरा जो लैंड रेवेन्यू था उसको उन्होंने कलेक्ट करने के लिए बोल दिया कि हम पूरा जो टैक्स है वो लेंगे। फिर 1918 में महात्मा गांधी जो थे
उन्होंने जो वर्कर्स के बीच में और मिल ओनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स थे अहमदाबाद में, उनको ठीक करने की कोशिश की। और फिर उन्होंने वर्कर्स को ये भी कहा कि जो वो स्ट्राइक करें और डिमांड करें कि 35% उनका जो वेजेस है, उनकी जो मजदूरी है वो बढ़ाई जाए। सत्याग्रह गांधी जी का एक बहुत बड़ा हथियार था और जो अर्बन एरिया के जो वर्कर्स थे वो गांधी जी के इस हथियार को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे थे और उनको फॉलो करने लगे थे। चिल्ड्रन, इसके बाद वी विल रीड अबाउट द रॉलेट एक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।